Assalamualaikum students, how are you all? I hope you people are well at your home and try to be safe at your places. Today I am going to teach you something new in your science. You people know that Allah Almighty has blessed us with lots of different organs and parts of the body. And among these you are seeing some of them I have pasted on the board. First one you see, it's an eye, it's a ear, nose, tongue and hand. Everybody knows about these things. But today I want to tell you something new, that what we people can sense, actually what we people can feel with these different things. First of all, I will talk about the eye. With our eye, we can see the things, so you can say sight or see the things is the work of the eye. Now what things you can see around you, just have a look around your room and see. You can see the wall, you can see the door and anything else around you. These are the common things. If you are looking properly towards the something while walking, obviously you will save yourself. But if you are not looking towards the things where you people are walking, you can hit yourself to something and it can damage your some part of the body. Now the next part that I am going to describe you, it's the organ, it's ear. Ear helps me to listen something. Now what you can listen now, obviously you are listening me, it's my sound. But around you, you are listening different sounds, like you are listening some songs, might be. You are listening the sound of your mom. Or you are listening the different sounds of vehicles. Now these sounds can be pleasant or they can be noisy. Like if you are listening some naat or some hum, that means then obviously you will feel it pleasure. But if you are going on the road, there you people are feeling noisy. There you people are feeling like many buses, they are blowing their horns. It is creating noisy mess area, so it's a noise pollution also. So try to keep away from these things. So ear helps you to listen the things. Now third thing is here, that is nose. Nose helps to smell something. You are smelling some good fragrances, like you are using perfumes and ether, and sometimes your mother is cooking some delicious food और उस खाने की खुशबू हमें बड़ी अच्छी लगती है, तो हमारी नोज प्रॉपर फंक्शन वहाँ पर कर रही है. इट गिव्स अस, अगर आप सूंघते अच्छा हैं तो आपका टेस्ट भी एनहांस होता है. कीप दिस थिंग इन योर माइंड. नाउ वी आर टर्निंग टुवर्ड्स टंग. दिस टंग हेल्प्स अस टू टेस्ट समथिंग. अब हम मुख्तलिफ खाने खाते हैं, कभी हम सॉल्टी खा रहे हैं, कभी हम स्वीट खा रहे हैं, कभी सावर, कभी बिटर. तो आपको ये डिपेंड करता है कि कौन सा टेस्ट अच्छा लगता है, उस हिसाब से यू पीपल आर ईटिंग द फूड. सो योर टंग हेल्प्स यू टू taste the food. And now you can taste, for example, you can taste here some salt and sugar. Now let's come on the last organ that I am going to describe you today. It's a hand. It's not only the hand, it's all the part of your body. It's the skin of your body. Your hands helps you to touch something. It's only the hand, but hand you are working from the front, but from the back side, if you are touching something, obviously it is giving you sensation of something. You are sitting there and somebody is poking you from the back side. Your skin feels some hurt here. So obviously your whole skin of your body that covers eyes, your tongue, your nose, it gives you the sensation. Now I have taught you 5 different things. These are the organs of your body. They are helping you to keep you safe from the danger in different situations. How they are working, keep it in your mind. These all together making one system inside that is called sense. So senses are made by eyes, ears, nose, tongue and hand. And now I will continue. जो मैंने आपको सिखाया है उसको कंटिन्यू करेंगे और समझने के लिए. और अब हम करेंगे वर्कशीट के ऊपर काम, and we will do that work on our workbook. What I have taught you or explained you on the board, now we will do the activity. It's your workbook. Our senses, unit number 4 and page number 12. It's clear here now. Now first of all we have to read the question. पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं. Which sense will save you in each situation. कुछ situations आपको यहाँ पे दी गई हैं,
उसमें कौन सी सेंस आपको सेव करेगी? राइट द करेक्ट सेंस अंडर द ईच पिक्चर, देयर कैन बी मोर देन वन आंसर। अब ये आपके पास कुछ वर्ड्स हैं, इसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पुट करना है। अब यहाँ पे तो ये कम है और ये पिक्चर ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे ये वाले वर्ड्स रिपीट भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा बार भी हम यूज़ कर सकते हैं। पहले मुझे बताइए, ये एक बच्चा है यहाँ पे और यहाँ पे ये पॉट पे कुछ गर्म कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि मुझे सेव कर सकती है? तो यहाँ पे मुझे टच करके ही पता चलेगा ऑब्वियसली, तो आप यहाँ पे टच भी कर सकते हैं, और अगर ये बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो हीट भी होगी, तो आप समझ सकते हैं कि साइड से भी आप इसे कर सकते हैं कि ये चीज़ गर्म है। तो दो चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं, टच करने से भी और साइड। और टच हाथ से नहीं करना कभी भी, कोई कपड़ा लेके कीजिएगा, डायरेक्टली कभी नहीं टच करना वरना बर्न हो सकते हैं। नाउ देयर इज़ द सेकेंड पिक्चर, ये कार है और दिस गर्ल वॉन्ट्स टू क्रॉस द रोड। अब यहाँ पे क्या चीज़ है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ शी इज़ हैविंग अ गुड साइट, यानी अल्लाह ताला ने आंखें दी हुई हैं देखने के लिए, तो यहाँ से बच सकती है। दूसरी चीज़, गाड़ी की एक आवाज़ भी होती है, ठीक है, तो यहाँ पे अब हम करेंगे, दूसरी चीज़ हो सकती है हमारे पास हेयरिंग, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरी पिक्चर है, दिस चाइल्ड डजन लाइक दिस फूड, इसको ये खाना पसंद नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़े थोड़े से फ्यूम्स उड़ रहे हैं, देख रहे हैं आप? तो फ्यूम्स उड़ने का या हीट उड़ने का मतलब ये है कि उसको वो क्या कर रहा है? स्मेल कर रहा है। लेकिन एक और चीज़ भी हो सकती है, यहाँ पे तो स्मेल इसके डायरेक्ट पता, लेकिन अगर हम दूसरी चीज़ इसके अंदर ऐड करना चाहें तो हम यहाँ पे साइट को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके फेस एक्सप्रेशन से पता चल रहा है ही डजंट लाइक इट इट्स स्मेल, तो हम यहाँ पे स्मेल ही रहने देंगे। अब यहाँ पे ये बिल्डिंग है और बिल्डिंग के अंदर देखिए यहाँ पे स्मोक उड़ रहा है, कोई आग लग गई है अंदर और यहाँ से धुआं सा उड़ रहा है। एंड दीज पीपल आर वर्किंग अराउंड, तो इन्हें कैसे पता चलेगा यहाँ डेंजर है, कोई चीज़ है? तो यहाँ पे एक चीज़ तो धुआं हमें नज़र आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? साइट, ये वाला साइट। या फिर हम एक और चीज़ भी कर सकते हैं कि हमें नज़र भी तो आता है ना धुआं, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? साइट ही है ऑलरेडी, ओके वी हैव ऑलरेडी डन इट, इट्स ओके। दूसरी चीज़ स्मेल भी आएगी। अब यहाँ पे दो चीज़ें तो हमें, क्योंकि कोई चीज़ जल रही होती है तो हमें इसकी स्मेल भी आती है। अब यहाँ पे एक नई पिक्चर है, यहाँ पे ये आदमी पीछे कार पे हॉर्न दिया जा रहा है एंड दिस चाइल्ड इज़ ऑन द बाइसिकल। अब हमें ये क्या करना है? बच्चा तो बड़े आराम से साइकिल के ऊपर चल रहा है, तो इसको ठीक करने के लिए हमें चाहिए कि ये प्रॉपर हेयर नहीं कर रहा, तो यहाँ किस चीज़ का मसला हो रहा है? इसका हेयरिंग का एक ही इशू है, इसके अलावा क्योंकि बच्चा पीछे मुड़ के तो पलट के देख ही नहीं रहा। अब यहाँ पे देखिए दे आर शोइंग दिस पर्सन इज़ अ ब्लाइंड पर्सन, इसने स्टिक उठाई हुई है और आगे ये गड्ढा है यहाँ पे देखिए, और ये बच्ची है यहाँ पे। अब ब्लाइंड पर्सन कांट सी, डेंजर में कौन है? दिस पर्सन, तो इसको बचाने के लिए ये बच्ची शाउट कर रही है, तो शाउट करेगी तो ऑब्वियसली दिस पर्सन विल हेयर इट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑप्शन हेयरिंग का। तो ये है आपकी एक्टिविटी, इसे आप देखिए, समझिए और अपने जहन में बिठाइए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।